ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। We'll chant Lord's name. Please repeat after me. Shri Krishna Govinda Hare Murare, Krishna Govinda Hare Murare, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, 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 गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद,
Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva, 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 Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Govinda, ah, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva, He Nath Narayan Vasudeva, Narayan, 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 Narayan Vasudeva, 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 Vasudeva। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री संगुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिओम टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग को हरिओम। लेट्स स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है? सूक्ष्म अय्यर जी का पहला क्वेश्चन है क्या वो? है? अच्छा। कैसी आपके पीछे से बहुत लाइट आ रही है? हाँ, लाइट इज बेटर। सो योर क्वेश्चन इज, हरिओम, as a grihastha, what rituals are of utmost importance? And is it okay to totally stop caring, worrying for the children, grandchildren, and home finances once we enter Pranaprastha? Sometimes this dispassion is not
taken kindly by the family? Will this incur bad karma? How should our dincharya be as a grahast or a vanaprasthi? Good question you have asked. सूक्ष्म जी, देखिए ऐसा है कि पहले तो समझना, कोई भी चीज को एनालाइज करने में, to analyze anything first we should see the complete picture. There is something called सामान्य धर्म and there is something called स्वधर्म. हम लोग को मानना पड़ेगा, we have to understand that the life is not a journey between birth and death. That's it. It's not that I was born and I will die. It is the 2 points in this many thousands of births of this jeev that I call I ride. Unless I am clear about the param dharma, I cannot be clear about swadharma. And we as a jeev are wandering from one word to another word, from one situation to another situation, from one joy and sorrow to another sorrow and joy. And in this long, shall I say journey or shall I say bhatkan or roundabout, we got this body. And the very purpose of this body was to get out of all sorrows forever. Getting out of all sorrows forever is called moksha. And we got this birth, 70, 80, 90 years, whatever you call it. And we start first studying the schools, then colleges, then we get married, then we have children, grandchildren, and so on. So scriptures have said very strongly few points. So when we are married, so whole purpose of life is not to spend time with the family or give time to the world. The ultimate, unless we know the ultimate purpose, we won't know what is the right now, what I meant. An ultimate purpose is to get out of all vasanas forever, from all weaknesses of our mind. The whole thing is I should be out of all weaknesses, all vasanas, and I have 60, 70, 80 years in my hand. And supposing I'm in my family life, like we all may be there. So we have 4 or 5 categories. I'll come to the question slowly. So depending on the ultimate purpose of getting out of all weaknesses or all vasanas, सारे दुख से, सारी वासना से हमेशा के लिए बाहर आने का नाम ही हमारा मोक्ष। और उसको, उससे बाहर आने के लिए फिर एक टर्म कॉइन किया गया शास्त्र में, उसका नाम है स्वधर्म. The name is Swadharma of that, which is in Bhagavad Gita also, in Bhagavad also, in Purana also, everywhere you would see this. So an ordinary person has a family life, number 2 professional life, number 3 social life, number 4 religious life, and number 5 spiritual life. Supposing it is there, at least first 3 may be there. ठीक है ना? Am I audible? हम दिख रहे हैं आपको? So you also be such that I can also see you very well. As you are seeing me, I should also see you. So again, I'll repeat. Family life, second was professional life, third was social life, fourth is religious, and fifth is the spiritual life. Religious and spiritual life will be maybe very little in the beginning, but at least family life everybody has. एक पारिवारिक जीवन है, एक व्यवसायिक जीवन है, एक सामाजिक जीवन है, एक धार्मिक जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन. हम उसको डिवाइड कर लेते. और and supposing a person is in गृहस्थ आश्रम, अभी हम वानप्रस्थ पर आएंगे, गृहस्थ पे पहले आते. So गृहस्थ आश्रम में, in the गृहस्थ आश्रम, family life and professional life will dominate, no doubt. लेकिन please get my point. The dharma is not meant to live a family life. It is meant that some of my hidden weaknesses family can expose and we can be out of that weaknesses.
not out of family. Now we have to get out of weaknesses through a medium called family. हमारे पास अहंकार है, हमारे पास attachment. I have attachment, I have ahankar, I have greed. So that family life is meant to convert my AV into SV. Ahankar Vasana into Samarpan Vasana. Second, Bhog Vasana into Vairagya Vasana. And Complain Vasana into Santosh Vasana. And Karm Vasana into Puja Vasana. I will repeat all these things. I had said this earlier also, but I am just repeating. फैमिली में आके अगर कोई अहंकारी होगा तो उसकी खूब पिटाई होगी. You will have a bad family. मतलब system will not allow you to be अहंकार. You will be slowly sidelined. तो अहंकार वासना has to change into samarpan vasana. Ahankar will include attachment also. So AV has to change into SV. सबके लिए जीना पड़ता है. पता नहीं कैसे लोग रहे आसपास, उसमें इन लॉज भी रहेंगे, हस्बैंड भी रहेंगे, वाइफ भी रहेंगे, मामा चाचा भी रहेंगे, बुआ जी भी रहेंगे, फूफा जी भी आएंगे. कभी किसी की डेथ होती है, कभी किसी के बर्थ होता है, कभी किसी की डेथ नहीं होती. तो कई तरह की प्रॉब्लम्स है वहां. तो बट you have to learn to to transform that. Otherwise, unless a person is a person who can melt and who can give up his individuality and attachment, he cannot live a very happy family life. Because you don't know what kind of people will be there. Out of 5-10 people, 1-2 are Rahu Ketu all the time. So we always have to learn to live with all these. तो अहंकार फैमिली लाइफ में नहीं चलेगा, ना अटैचमेंट चलेगा. तो अहंकार वासना changes into samarpan vasana. Bhog vasana into vairagya vasana. By the time person is 50-55, he should know that all these enjoyments was not very great as I thought. सबको this conclusion should be there that it is not very great to have very good food or very good hotel or very good ride. All these are junjuna of the bachcha. This is the prattling things are there. ये सब झुंझुने हैं, बस थोड़ी देर के लिए आप हंस लो, उसमें कुछ भी prattlers, they are prattlers. They are not anything great than the prattle. There's a bigger joy. So family life is meant to discover the dispassion. So bhog vasana has to change into vairagya vasana. I hope I am clear. So first was ahankar vasana changing into samarpan vasana. Second was bhog vasana converting into क्या था? वैराग वासना. And third क्या था? कर्म वासना into complaint vasana. Something prarabdha has not given. That is the area of our complaint. Something is not good in my life. Everything is not there. It can be health, it can be husband, wife, children, in-laws, anything, job. That is some complaint zone. I have learned to be satisfied. I have come in terms with God in that area. What God has not given, I have to coming in terms with God in that area. What I don't have is called satisfaction. हमने भगवान के साथ उनकी मान लिया है कि ठीक है, हमारे पास ये नहीं, हम बहुत खुश हैं. इसके ना होने से हम बहुत खुश, पैसे ना होने से हम बहुत खुश, बेटे ना होने से हम बहुत खुश, बहुत अच्छी हेल्थ ना होने से हम बहुत खुश. I have tried my best to get it, but I knew it was not in my prarabdha. So what was not in my prarabdha, I have converted into my sadhana. That is my zone of satisfaction. वो satisfaction का zone हो गया. So this is third point, complaint vasana into santosh vasana. Fourth, karma vasana into puja vasana. I wanted to become doctor, I wanted to become businessman. हमने इतना समर्पण किया कर्म का, इतना समर्पण किया कि my रजोगुण is not there or it has lessened a lot. अब मन नहीं करता बहुत काम करने का. That zeal which a person has in 20s and 30s, same zeal he should not have in 50s. हो गया. आपका अगर आपकी वही zeal अभी भी है,
it's a sign of non-developed mind. There is something bigger. लेकिन कितना वासना? 4 वासना हो गई, 4 वासना हो गई, एवी, बीवी, सीवी और केवी। कर्म वासना, पूजा वासना, ठीक है ना? कैन आई मूव अहेड? अब आपको बताएं हम कि जब हम इस लक्ष्य के साथ, with this goal in mind, when I go into the grahastha ashram, so by the time I am 55, 60, my samarpan vasana, vairagya vasana, santosh vasana, all these vasanas have increased more, and they want their field of action. And by this time, children are now grown up and they should be married. And if they are not marrying, it's their problem. I don't care for that. Learn to know that this is the end of my responsibilities. Other person will not decide my responsibility. ये धर्म है ना, मेजॉरिटी से नहीं डिसाइड होगा कि majority of the people in the world are Christian and they are Muslims, therefore these two religions. हिंदू तो इतने नहीं है, मतलब हिंदू रिलीजन ही गड़बड़ हो जाएगा. It will not be decided by majority. It is be decided by scriptures, by saints. I have discovered a deeper joy in me. I have discovered the joy of meditation. हमारी वैराग्य वासना, हमारी साधना वासना, हमारी समर्पण वासना बढ़ गई है. Now it wants a more quieter time with myself alone. तो जो कर्म योग प्रधान जीवन था, now I want to go in the life which is upasana pradhan and bhakti pradhan. So I want to go in a life which is now converting my mamta vasana into vairag vasana, and ultimately giving my time with the Lord in upasana and tapasya. Tapa shraddhe ye upavasanti aranye shanta vidvamso bhaiksh charyam charan. So those who are with tapasya and those who are with upasana. So अब आपके पास, you need a medium-less interaction with the God. And body also will not be that fit to run around. And you have not few years left before you are passing away. You have 20 years, 15 years at the most. Keep some years for the doctors also. you are now on the fag end of the life. If you cannot get liberation, at least you should pray for a beautiful next birth. Its time is ticking off. Now it is high time you have to give the keys to somebody else. And therefore scriptures have designed what is it called? Vanaprastash. It is upasana pradhan tapasya. I'm not saying you should not love somebody, but I have made myself emotionally independent. वरना 2 दिन हो गया तुमसे बात ही नहीं हुई, नहीं हमसे बात ही मत करो, कुछ अर्जेंटली हो तब बात कर. People have to know that I have higher interest. Because I have been attending them all the time, therefore they have become my addict. And they feel that their love is gone. हमने अपने जीवन का सब अच्छा समय उनको दिया है. I've given 30-40 years of my life to them. Now it's my time also, that I want my time with myself. So this is the time for upasana, living in solitude, and for that 30 years of prayers are required. For a vanaprastha ashram, your prayers should start from 25 latest. 25 साल की उम्र में जो प्रार्थना करता है, उसके पास 55वें साल तक उसका वानप्रस्थ आश्रम भगवान तैयार कर. आपने तैयार नहीं किया, आपने प्रेयर नहीं किया, एकाएक वानप्रस्थ आश्रम, बाहर की सिचुएशन नहीं आपके पास आएगी, ना गुरु ही आएंगे, ना कोई आश्रम आएगा, ना कुछ ऐसा होगा, बाहर की परिस्थिति बनेगी नहीं. बिकॉज माई पास्ट प्रारब्ध may not allow that. But I need a quieter system.
I don't need attention seekers and I don't want to give attention. At least for 8-9 hours per day. By the time you are 60, you should spend at least 4 hours with yourself alone. 65, at least 6 hours. 70, at least 8-9 hours. This way I will be more detached. I'm not responsible. जिसको शादी करना हो करे, ना करना हो ना करे. You are not responsible for your grandchildren. They are not your grandchildren anymore. Mentally, you have dispossessed everybody. If you want a good death, please prepare for that. Art of dying also has to be there. Janma Antakale Narayan Smriti has to be there. I'm preparing. I don't want to remember anybody. I want to peacefully go in the lap of Lord. Antakal Param Labh is there. Antakale Param Labha Narayan Smriti. This is the importance of Vanaprastha, where all my gross vasanas have been taken care by Grahasthashram. Chanchalya Vasana and Bhog Vasana will be taken care by Vanaprastha, and Agyan Vasana will be taken care of by Sannyas Ashram. Now in the Sannyas Ashram, I am only contemplating on the self. हम आत्म चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे. That's it. If I have some time left. Please note, aging will also affect your body, your capacity to sit, your capacity to retain. All things will go away slowly. And all prarabdha rog will come after 40. They're on the mark, get set. As you come 50 or 45, they say go. Diabetes hai, blood pressure hai, back problem hai, health issues hai, stomach hai. You become very rich. There is a stone in the kidney. There is a stone in the gallbladder. There is a steel in the feet. Steel Vivekananda said you should have nerves of steel and iron. I have rods of steel. रॉड है हमारे फीट में, नर्व्स की तो बात ही छोड़ो. ये सब भी आएगा. अगर हमने प्लानिंग नहीं किया है, आप जीव की दृष्टि से सोचिए, केवल इस मनुष्य की एक आदमी की दृष्टि से मत सोचिए. प्लीज थिंक फ्रॉम द दृष्टि ऑफ जीव बिफोर यू थिंक फ्रॉम द दृष्टि ऑफ आत्मा. Promote from Dehat Buddhi to Jivat Buddhi, from Jivat Buddhi to Brahmat Buddhi. People talk about Brahman, they are highly embedded in their bhog, etc. Ahankar वासना ही नहीं कम हुई, भोग वासना ही नहीं कम हुई, कंप्लेन वासना ही नहीं कम हुई, कर्म वासना ही नहीं कम हुई. ये 4 वासना को डील करने का ही नाम गृहस्थ आश्रम. So Grahasth Ashram will deal with all these things. And if it is not dealing it, it is a waste of time. Grahasth was a waste of time. वो भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे. I'll be dying with the worst person. I was born as a better person, I'll die as a worst person. पहले हम कम गुस्से वाले थे, अब ज्यादा गुस्से वाले हो गए. As a husband, I'm more angry now. As a wife, I'm more angry and complaining now. अब हमें खाने का ज्यादा शौक चढ़ गया, पहले कम था. अब बड़ा घर ज्यादा चाहिए, पहले कम बड़े घर में रह लेते थे. पहले केवल बच्चों से अटैच थे, अब ग्रैंडसन ग्रैंडचिल्ड्रन सबसे अटैच हो गए. इट इज अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम. अपने को बेवकूफ कब तक बना के रखेंगे? हो गया. वर्ल्ड विल लीव यू. इफ यू डोंट लीव, दे विल लीव यू. बेटर आई विल लीव फर्स्ट बिफोर दे लीव. लव एवरीबडी बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी इमोशनली. कोई हमसे ना मिले 1 साल तक तो भी हम रह सकते हैं उसके बिना. ये हमारा वानप्रस्थ आश्रम है. You offer all the responsibilities to the God. You take care of my grandson. You take care of my grandchildren. You take care of my what is it called? Other relatives also. Because they have been getting so much of attention, therefore they cannot see that you are doing sadhana or you are getting into satsang. And they will miss you in that form.
but they should be prepared. I have to prepare everybody in my life, what I want and what I don't want. Your journey is alone as a jeep. Nobody is along with your journey after the death. Even during this life, you had your journey alone. Your experiences, you had to go through it alone. Nobody will come to share the experiences of this birth also. When you are angry, when you are frustrated, when you have calm truth, who comes to take it out? You have to face the वासना of your own life also. आपको अपना जीवन खुद ही जीना पड़ा था, उसको ठीक करना हमारा ही कर्तव्य है. And Swadharma should take to Param Dharma. So now, from family life, professional life, and social life, in Vanaprastha ashram, you are more into religious life and spiritual life. First three have been reduced, have been cut down by 60%. And in sannyas ashram, you cut down everything and make it 90% you cut down, and 90% rise the only spiritual life on, and little of religious. This is called a complete successful life, where you don't have experience that I'm dying. And I have no experience that I can never die. हमारी मृत्यु नहीं होती. When Parikshit was leaving the body, this was his experience, that I am not dying. न मरिष्येति इति पशु बुद्धिं जहि. सुखदेव जी ने बोला, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ो कि हम मरते हैं, हम मरेंगे. हमें अब बर्थडे नहीं बनाना है. I'm out of all births and out of all birthday. I don't want to be born. Unless you see from the point of drishti of Jeev, you cannot decide your dharma in this life as a father or mother or son. हम दाहिने मुड़े कि बाएं मुड़े, फिर कोई पूछेगा आपको जाना कहाँ है, where you want to go, that will decide should it go straight or left or right. And therefore, there is nothing, no harm, because there is no paap or no sin will incur, and people will not, if it says something, they are not prepared. I have not prepared or prayed sufficiently from the beginning, so that situation can be conducive for my future spiritual growth. I need a guru, I need ashram. I need infrastructure for my mind. I need infrastructure for my satsang. हमें गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, हमको कोई पढ़ाने वाला चाहिए, हमको शांति चाहिए. कब तक रोटी बनाएंगे हम? कब तक हम गेस्ट को बुलाएंगे? कब तक बाहर के लोगों के साथ हम घूमने जाएंगे? कब तक आप जाइएगा अमेरिका में? कब तक आप कनाडा घुमाइएगा? नायग्रा फॉल्स कब तक जाइएगा? डिज्नीलैंड कब तक जाइएगा? इस झुंझुना से कब तक हम लोग खेलते रहेंगे? How long we'll play with the prattlers and all these things? हमारा टेस्ट बहुत हाई हो गया है. The beauty of life is, as higher you go, lesser you keep the choices. Reducing the choices, that is called your evolution. आपने अपने विकल्प कम कर दिए हैं, और हमारे विकल्प जो है वो संसार में नहीं मिलते हमको. हमने ऐसे विकल्प बनाए हैं जो हमको अंदर जाने के मिलते हैं. My choices are not, I cannot get those choices in the world. My choice is to go inside. I have the choice where my choice is of absolute fearlessness, absolute knowledge, absolute fulfillment, absolute completeness. I don't want any relative choice. I have grown to an absolute choice. I want to go through that choice which was choiceless. And that is called the person's evolution. इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कुछ उसमें नुकसान हो गए. हमने सब कुछ किया हुआ है, और अगर कोई बोले, अपने को समझाना चाहिए कि हमने 30 years दिया है, हमने, I have given my best time of the life to you, I have given money, I have given my whole body,
I have given my prime time. Now I want some time with my God, with my Guru, exclusively. I have reduced all my demands. नहीं चाहिए हमें कुछ. और इसीलिए हमने बोला, you have to start praying from 25, because my karma of the past will stop this situation. जिससे हमारा मन भी बने ऐसा और हमारी बुद्धि भी बने ऐसी. अगर आपको याद हो भागवत में सारे राजा युधिष्ठिर, पांडव, they gave the kingdom to Parikshit, Prithu, Bharat. Something more is there. No one is very satisfied with something small experience. I want bigger experience. बेबी फूड से कब तक काम चलेगा? पाउडर फूड, बेबी फूड से कब तक बेबी बड़ा नहीं होगा क्या? बेबी को बड़ा होना पड़ेगा. वो कब तक सेमी सॉलिड खाएगा? कब तक मैश्ड पोटैटो और मैश्ड बनाना लेगा? उसको सॉलिड फूड चाहिए. उसको रोटी दाल चावल चाहिए. हाँ, इस 20-year-old. हम लोग जो फूड 25 में खाते थे, हम 55 में भी हमको पिक्चर अच्छी लगती, 55 में भी हमको रिलेटिव्स अच्छे लगते हैं. शर्म आनी चाहिए. 55 में भी हमको घूमना अच्छा लगता है. 55 में भी हमको बच्चे अच्छे लगते हैं. हमने किया क्या था 30 साल, 30 years हमने किया क्या? अभी भी हमको वही खाना अच्छा लगता है. अभी भी जवान में वही चटकार है. Still my taste buds are very sharp. हमने किया क्या 30 साल? What I did? इसी के लिए हम पैदा हुए थे क्या? I should have become dog and cat. अगर हमको यही बनना था तो हमको यही बनना चाहिए था. हम कब तक लोगों के पीछे रहेंगे कि वो खुश हो? कोई खुश नहीं होता दुनिया में. लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं. एवरीबॉडी इज आफ्टर देयर सेल्फिशनेस. उनका ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए, उनका अटैचमेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए. Nobody wants my evolution so easily. They feel I will lose his seva, I will lose his attention. That ego satisfying husband, ego satisfying wife, ego satisfying child, I want that. That is not available. Kab tak? And therefore scriptures have said, please try to grow over. Don't leave it, grow over. Grow means presence or absence doesn't make a difference. That is called growing over. My demands are bigger. My lower demands are not there, because I have got the taste of meditation. I want to meditate for 2 hours, for 3 hours. I want to do puja for 3-4 hours. I want to listen to satsang for 3 times a day. हम पास समय नहीं मिलता है, उससे हमें बाहर आ. So this was the first क्वेश्चन. आई होप रिचुअल्स के बारे में हमने बता दिया आपको. इसी को टेक्निकली बोलते हैं देव यज्ञ, पंच यज्ञ बोलता है. देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और भूत यज्ञ. 5 यज्ञ करते हैं हम लोग गृहस्थ आश्रम. और पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये तीनों कम हो जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम में. फिर ब्रह्म यज्ञ चलता है और देव यज्ञ चलता है. और संन्यास आश्रम में केवल ब्रह्म यज्ञ होता है, केवल आत्म चिंतन की धारा है. आई होप दिस इज क्लियर. कोई बोल ही नहीं रहा या कुछ सुनाई नहीं पड़ता. क्या करना चाहिए भाई? थैंक यू स्वामी जी. बहुत सुंदर. स्वामी जी ये भी संभव है ना कि कोई पर्सन को, स्वामी जी ये भी संभव है कि कोई पर्सन ये सारे आश्रम को ग्रेजुएट ना करे और क्वालिफाइड हो किसी हायर आश्रम के लिए? डबल प्रमोशन हो जाएगा उसका तो. उसकी बात ही क्या है अगर ऐसा हो. एक जाबाली उपनिषद में लिखा है, यद अहरे विरजेत तत् अहरे प्रव्रजेत. That day, that moment when you are totally dispassionate, you can go to the spiritual life totally. That day itself, ब्रह्मचर्याद्वा गृहस्थाद्वा, ऐसा लिखा है.
ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से भी। He is not fit. Inside vasana should meet outside situation. Otherwise, you'll be suffocated. You will be living, you will be dying while living. आप मरते रहोगे, अपने को कोसते रहोगे। Pray to the God. Therefore, I say do उपासना। भगवान की पूजा करो, जप करो, उनसे प्रार्थना करो, वो सारे रास्ते खोल देंगे। He will open all the doors for me. Shankaracharya took sannyas at the age of 8. But I am saying external sannyas is mandatory. Emotional sannyas is compulsory. Internal sannyas is not mandatory, not optional. It is compulsory. I should feel a day should come that even if I don't see my children, grandchildren for 1 year, 2 years, I have full confidence God is taking care of them more than what I could have taken. और बहुत अच्छे से होंगे, कहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे, हम बहुत खुश हैं उनके बिना। I don't need to see anybody. Don't stop loving, but stop hanging. Hanging is not loving. You hang around somebody. You want to talk to somebody. हमें किसी से बात करना है, किसी का चेहरा देखना है, किसी से रोज हमें थोड़ी देर कोई अच्छा खाना ही चाहिए। अभी भी एवी, बीवी, सीवी, अगर ये नहीं ठीक हुआ तो क्या ठीक हुआ? अगर समर्पण की वासना नहीं बढ़ी, वैराग की नहीं बढ़ी, संतोष की नहीं बढ़ी, तो हम पैदा किस लिए हुए थे? That should not be the goal of human life. So यहां तक तो केनोपनिषद में तो ऋषि ने बड़ी डांट लगा दी। उन्होंने बोला कि यह चेत अवेदिता सत्यमस्त, न चेदिया अवेदिता महति विनष्ट। बोले अगर यहाँ रहते रहते ज्ञान हो गया तो वेरी गुड। If you are not having the knowledge of Brahma before dying, it is a very big loss. Because next birth, you don't know where you will be born. Next birth, you don't know you will get this opportunity or not. Even if you get opportunity, again you have to by heart all the shlokas. फिर से गीता चैंटिंग करनी पड़ेगी, फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर से आपको जूम क्लास में आना पड़ेगा। पता नहीं तब तक क्या हो क्या ना हो। You just don't know what time will be there. Therefore, they say, hey, while it is sunshine, we try to get the benefit as much as possible. That is very, very important. I hope you have written what should the दिनचर्या। दिनचर्या हमने बताया depends on what is your emotional demand. अगर हमारे पास फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, अगर फर्स्ट 3 are very important, your dincharya and schedule will be different. But if you are graduated towards 60% of spiritual and religious life, your dincharya will change. I already told that after 60, around 5-6 hours, shut the door, even if you're home, and spend time with yourself. आप दरवाजा बंद कर दीजिए। अगर आश्रम में नहीं जा पा रहे हैं, आप दरवाजा बंद करिए, आप पूजा करिए, सत्संग सुनिए, पाठ करिए, कुछ भी करिएगा, संसार का चिंतन मत करिए। I don't belong to anybody. Until if unless urgent, don't knock. Let them be habituated. आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ऐसे कर लीजिए। That dincharya should change. And I tell you, you pray to God, God will make your husband, wife, children like that you will get such opportunity. भगवान आपके लिए सारा रास्ता खोल देंगे। चले भाई, next question. Thank you. So I think because of you, everybody has this question. But and because of you, we all are winning. Next question is from युवराज शंकर गायकवाड़। तो आपका क्वेश्चन है, स्वामी जी के प्रकाश डालने की कृपा कर। तो हिंदी में बोले चलेगा?
जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या हमारी प्यासी है। जो हमारे अंदर इच्छा है उसी का नाम प्यास है, और एक प्यास के अंदर हजारों प्यास। देयर इज नथिंग कॉल्ड वन डिजायर, वन डिजायर हैज थाउजेंड डिजायर हिडन इन इट। ऐसा नहीं होता कि हमें घर की इच्छा है, घर की इच्छा के बाद पैसे की इच्छा होगी, जॉब की इच्छा होगी, सर्वेंट की इच्छा होगी, गार्ड की इच्छा होगी, लंबे समय तक रहने की इच्छा होगी, दूसरे को दिखाने की इच्छा होगी, कई इच्छा। ऐसा नहीं कि पत्नी की इच्छा हुई। ऐसा लोग बोलते हैं कि हमें बस उनसे प्यार है और कुछ नहीं चाहिए। उस एक प्यार के अंदर हजारों लाख पूरी दुनिया आ गई। उसमें बच्चे की इच्छा आ गई, उसमें ग्रैंडसन की इच्छा आ गई, बच्चे की स्कूल की इच्छा आ गई, अच्छे घर की इच्छा आ गई, गाड़ी की इच्छा आ गई, अच्छे बॉस की इच्छा आ गई, अच्छे सबॉर्डिनेट की इच्छा आ गई, अच्छे शरीर की इच्छा आ गई, अच्छे खाने की इच्छा आ गई, हजारों इच्छा। और हर इच्छा हमको, हम उसके गधे बन जाते हैं और हमको मारती रहती है और हमको दौड़ाती है। वी बिकम द डोंकी और द हॉर्स डिपेंडिंग, एंड वी आर बीन whipped by those desires from birth to death, from again from new birth to new death। यही इसी को हम लोग जीना बोलते हैं। बीच में थोड़ा सा हंस लेते हैं, शादी वादी में नाच लगते हैं, ठुमका लगा लेते हैं, थोड़ा सा बीच में खा पी लेते हैं होटल वगैरह में जाके, थोड़ा सा यहाँ वहां घूम घाम लेते हैं। 10 घंटे का दुख, 5 मिनट का सुख, फिर दुख, फिर टेंशन, फिर थोड़ा सा सुख, फिर दुख, फिर इस तरह से हम जिंदगी, इसी को जिंदगी बोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बोला ऐसा करो, तुम भगवान की प्यास बढ़ाओ। इस एक सत्संग और भगवान की प्यास से आपकी दूसरी प्यास कम होती जाएगी। When you have one thirst, this one thirst will take away all other thirst slowly। जैसे आप लोग की सत्संग की प्यास, आप लोग की भागवत की प्यास, रामायण की प्यास, उस समय हम न घर चाहते हैं, न बच्चे चाहते हैं, न पति पत्नी चाहते हैं, न अच्छा भोजन चाहते हैं। अपने जीवन का जब ज्यादा समय हम भगवान के प्यासे होते हैं, बस यही हमारी हमारी प्रोग्रेस होती। The increase in my desire for God or self is called the progression of human mind। जितनी हमारी प्यास बढ़ गई, more is this thirst increasing for God or for my spiritual life, ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी प्यास कम हो जाएगी। और ये एक ऐसी प्यास है जो बच्चे नहीं देती। भगवान की प्यास बच्चे नहीं देती। जगत की प्यास के अनगिनत बच्चे, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ये सारी दूसरी प्यास खत्म कर देते। हमें और कुछ चाहिए नहीं, में सारा सुख मिल गया, जब से मिल गया, पूजा से मिल गया, ध्यान से मिल गया, शरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, वो हो गया। और उस भगवान का नाम कृष्ण है, और राधा जी भगवान की अनंत प्यास का ही नाम। राधा जी कोई स्त्री का नाम नहीं। किसी ने हमसे बोला, लोग ऐसे सड़क छाप क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन शायद किसी के मन में आए। बोले राधा जी प्रेमिका है, रुक्मणी पत्नी है, वो प्रेमिका उमिका नहीं है, वो एक तत्व है ब्रह्म। वही तृप्ति की दृष्टि से कृष्ण बन गया, वही प्यास की दृष्टि से राधा बन गया। There is one Brahman, from the point of taking joy he is called Krishna, from the point of giving joy the same element Brahman is called Radha। तो राधा और कृष्ण ब्रह्म का ही नाम है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। ये कोई स्त्री स्त्री नहीं है। और रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का होता है। अनंत शक्ति, अनंत प्यास शक्ति, उसी का नाम राधा है। जब तक कि राधा नहीं होगी, आराधना नहीं होगी। आराधना में राध है, राध साध सिद्ध हो एक धातु है। तो जो अभी आप जब जितना अच्छा आपकी प्यास होगी ना, उतना अच्छा आपको अच्छा लगे। हमारे बोलने की प्यास जितनी होगी, उतना हम तन्मय होंगे।
जप में प्यास जितनी होगी उतना अच्छा आपका जप होगा, पूजा की जितनी प्यास होगी उतनी अच्छी पूजा होगी, गुरु की जितनी प्यास होगी उतने उतने आप गुरु की सेवा करेंगे। बड़ी प्यास से छोटी प्यास को काटेगी, और यही राधा तत्व है। और इस प्यास में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, संसार की प्यास पूरी होने पे खत्म होके फिर दूसरी प्यास आ जाती। पानी की प्यास थी, पी लिया, फिर बाद में पिएंगे, अभी और नहीं पिएंगे। भोजन की प्यास थी, खा लिया, भूख खत्म होगी, अब 6 घंटे बाद खाएंगे, आई होप सो, ठीक है। लेकिन ये जो भगवान की प्यास है, इसमें तृप्ति ही है, इस प्यास का ही नाम तृप्ति है। आली प्रीति की रीति निराली, यह न होए, ये न भरे न होए खाली, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना पियो उतनी प्यास लगती, उतनी तृप्ति होती। मतलब जब में और प्यास लग गई उतनी तृप्ति भी होगी। तृप्ति इज इक्वल टू प्यास, प्यास इज इक्वल टू तृप्ति, इसी का नाम राधा है। और इसी का नाम आराधना है। खूब प्यास बढ़ाई। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा, भाई भजन कैसे हो, प्यास कैसे बढ़े? बोले भजन करते करते बढ़े। कोई भी कर्म करते करते ही उसकी इच्छा बढ़ती। यू बिकम, आप कमरे में रोज ड्राइंग रूम में हम ऐसे ऐसे करें कि हम स्विम कर रहे हैं, उससे स्विमिंग की प्यास नहीं बढ़ेगी। स्विमिंग करने के बाद ही स्विमिंग का मन करेगा, ठीक है। आप जितना हाथ पैर मान लीजिए कमरे के अंदर, कि सर्दी बहुत है, हम कमरे में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बस कौन जाए इतनी दूर, उससे नहीं फायदा होगा। आपको जाना पड़ेगा और स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करना पड़ेगा, तब स्विमिंग की प्यास बढ़ेगी। 2 दिन 3 दिन करने के बाद प्यास बढ़ेगी। जो रोज जप करेगा उसकी प्यास जप की रहेगी, जो कभी कभी करेगा उसकी प्यास मर जाएगी। कभी कभी पूजा करेगा उसकी प्यास मर जाएगी। फिर आप बोलिएगा कभी कभी सत्संग करते हैं, तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है, फिर वही मामला होगा। हाँ, लोग बोलते हैं भाई हम कभी कभी, जब भी कभी वाले से मत मत, हाँ, फिर हमें वही याद आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। ये तो प्यास बना सकते हैं आप प्यास खत्म कर सकते हैं किसी की। आप जबकि प्यास बढ़ा लीजिए, खत्म कर लीजिए। आप राधा जी को आप नंदन अंदर बुला लीजिए, आप छोड़ दीजिए। लेकिन राधा केवल एक कृष्ण की प्यास, और दिन रात वही है। इतनी प्यास है कि वो कृष्ण रूपा ही राधा है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ये सागर है, सागर, ब्रह्म एक सागर है, और उसमें 2 लहर, एक नीली लहर है, एक सफेद लहर। नीली लहर कृष्ण है, सफेद लहर राधा है। दोनों लहर ऐसे आ रही थी, एक बार टकरा गई। जो सफेद लहर थी वो नीली हो गई, जो नीली लहर थी वो सफेद हो गई। राधा कृष्ण हो गया, कृष्ण राधा हो गए। तृप्ति प्यास हो गई, प्यास तृप्ति हो गई। जब तक कि प्यास नहीं होगी आपकी ध्यान में, पूजा में, सत्संग में, आप बहुत देर तक नहीं कंटिन्यू करिएगा। पूरी साधना एक प्यास को बनाने का ही नाम है। उसको आप ध्यान की प्यास बोलिए, उसको जप की बोलिए, उसको पूजा की बोलिए। इतनी बढ़ा ले कि बाकी कुछ अच्छा ही लगे। ऐसे बहुत प्यासे को, बहुत कोई प्यासा हो, उसको बस पानी चाहिए, उसको तारीफ नहीं सुनना अच्छा लगता, उसको अच्छा बिस्तर नहीं चाहिए, उसको अच्छा मकान नहीं चाहिए, उसको बस पानी चाहिए। जिसको ईश्वर की प्यास होती है उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ऐसा लिखा, जो मोहि लागे राम रस नीके तो ही हो जावे, नवरस अनरस सठरस सीटे। गोस्वामी ने लिखा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि भवान अखिल अंतरात्मा। ये है। तो यही आपका प्रश्न था हमारे काशी युवराज जी। यही दिव्यता है उस प्रेम की। कभी भी राधा जी को भगवान कृष्ण से अलग मानना अपराध है, कि उनको स्त्री मानना अपराध है। वो अनंत शक्ति है, अनंत प्यास है, और जब तक हमारे अंदर वो नहीं आती है तब तक हमारी साधना नहीं होती।
इसलिए राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इसलिए राधे श्याम है, श्याम राधे नहीं है, राधे श्याम। वो राधा ही राधा है, वही सीता है, वही पार्वती है। जो राधा जी वहां है उन्हीं का नाम सीता है और उन्हीं का नाम पार्वती। चलते हैं अगला। आप लोग टायर्ड तो नहीं होते? हम देख तो ले सब लोग थके तो नहीं कोई दिख रहे हैं? नहीं, चलिए ठीक है, ऐसा भी कोई गड़बड़ नहीं, सब तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। हाँ। और एक बार देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं, सब तो दिख रहे हैं ठीक। अच्छा, कोई लोग लगे फोटो लगाया है कि खुद बैठे हैं, ऐसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा है? नहीं नहीं, बैठे हैं खुद, लाइव फोटो नहीं है। अच्छा, ऐसा लगा हमें कि कुछ लोग फोटो है, और कुछ लोग की फोटो ऐसा लगता है कि लाइव बैठे। एनीवे यार, हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको जो करना करे, अपने बस में थोड़ी ना है कुछ। एनीवे तो जूम का फायदा उठा रहे हैं लोग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन। कोई एक सोहम कोठे करके हैं सतना से। हरिओम सोहम। अच्छा, इनका क्वेश्चन सुनिए आप। माय नेम इज सोहम कोठे एंड आई एम 8.5 years old. अच्छा, वेरी गुड टू सी यू सोहम। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। थंडर बहुत डर लगता है तुमको? I have a question for you. I have heard many saints like Swami Chinmayanand ji who went to Himalayas to meditate. My question is that did they also face these disasters like rain, lightning, landslide, etc.? Were you also scared of loud thundering when you were small? If so, how did you overcome them? What should I think in this situation? Such a sweet question, Soham, you have asked. तो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि तुमको डर लगता है लाइटनिंग से, थंडर से, ये सब तो बिल्कुल। अभी देखो, हम हिल्स पे हैं। यहाँ तो कल रात में इतनी जोर से बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि कुछ कहने को, ऐसा लगा कि सब उड़ जाएगा। लेकिन हम लोग का डर नहीं लगता। जिसके पास भगवान का नाम होता है ना, उसको कुछ भी नहीं लगता। कोई भगवान अच्छे लगते हैं? कौन भगवान अच्छे लगते हैं बेटा आपको? राम जी। राम जी अच्छे लगते, क्या बात। बस बोल दिया करो राम, जोर से, भगवान श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जैसे ही बोलोगे सारा डर तुम्हारा चला जाए। और उनके साथ हनुमान जी भी आ जाएंगे। राम जी धनुष बाण लेके तुम्हारे आसपास खड़े रहेंगे और हनुमान जी गदा लेके खड़े रहेंगे। तुम्हारे राम बोलते ही सारी जो थंडर है ना, क्वाइट हो जाएगा। लेकिन मन से बोलना, और ऐसा बोलना कि सामने खड़े हुए राम। ये मत सोचना कहीं दूर राम जी आए। उनको बोलना वही हमारे मम्मी है, वही हमारे पिताजी है, वही हमारे भाई है, हमारे बहन है, सब कुछ है। खूब जोर से उनको मन ही मन बुलाना, और तुम बुलाओगे तुमको सारा डर खत्म कर दे। यू विल नॉट बी अफ्रेड एट ऑल ऑफ एनीथिंग। कभी डरना नहीं लाइफ, गलत काम करने से डरना। कुछ भी हो जाए, भगवान की कृपा से हमको डर वर नहीं लगता था इस तरह से। हम जब छोटे थे, हमारे दादाजी ने हमको बताया, कभी कभी बहुत अंधेरा हो जाए रात में, हमारा बहुत बहुत बड़ा घर था, उसमें कभी कभी हम अकेले हो जाते, हमें लगता था कोई भूत आ गया, क्या आ जाए। तो बोलते थे, सोचो कि तुम्हारे आसपास हनुमान जी गदा लेके ऐसे तो घूम रहे हैं, और उसके बाद से डर ही नहीं लगता। लेकिन भगवान का नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा की खूब रिस्पेक्ट किया करो, बिल्कुल गुस्सा मत किया करो, रोज उनको प्रणाम किया करो, तुमको सब खुशी मिल जाएगी जीवन की। जिनके पास उनके मम्मी पापा और गुरु खुश रहते हैं, उनके पास सारे जीवन की खुशी रहती। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम।
never get angry, never shout, never scream. Okay? हरिओम बेटा, लव यू, तुमसे मिलेंगे जल्दी। हाँ भाई प्रियंका जी, आप आइए सामने, आपका क्वेश्चन है। प्रियंका कोठे फ्रॉम सतना, आपका प्रश्न है। अब ये समय तो नहीं है लेकिन प्रश्न है। हम लोग पिछले 4-5 साल से आपके ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं, डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम दोनों ने ध्यान और जप का अभ्यास करना चालू किया है। निरंतर एहसास हुआ कि ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल है। निरंतर विचारों की चहलकहमी बनी रहती है। ध्यान और जप की प्रैक्टिस करते हैं, 1 साल हो चुका है। मेडिटेशन की काफी मेथड्स हैं, वी आर गेटिंग कंफ्यूज ऑन विच मेथड टू फॉलो। इसी वजह से मन में सवाल उठते हैं कि कहीं कोई गाइडेंस मिल जाती, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। जाप करते समय आंख बंद करके लिखा हुआ ओम नमः शिवाय देखने की कोशिश करते हैं, क्या यह प्रोसेस सही है। On days when someone is ill in the family, especially kids, जब meditation becomes difficult, I don't know how to concentrate, please guide। आपने एक प्रश्न में बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछ लिए। सबसे बड़ी अमीरी यही है प्रियंका कि जीवन में बहुत श्रद्धा रहे। दरिद्रता श्रद्धा ना होने का ही नाम होता है। A person is poor and pauper only when he has no faith in or God। आपके पास बहुत विश्वास है, यही आपकी अमीरी है, यही आपकी करोड़पति है। आपके पास अरबों दुनिया है, आपके पास भगवान है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। जी स्वामी जी। दूसरी बात, आप परेशान मत हुई इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं, बस आप सत्संग सुनते रहिए। जी कोई सत्संग सुनेगा तो अपने आप अनकॉन्शियसली चेंज होगा। यू डोंट पुट एफर्ट टू चेंज, जी you will automatically feel that I don't know, I'm not reacting today, I don't know, I'm not getting angry today, I don't know why I'm conscious of my wrong things. Slowly you will change. Keep on hearing to satsang. This is my first point. Second point is, जो आपकी पर्सनल साधना है, जहां पे आपकी श्रद्धा हो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन हम जब आएंगे सतना तो आप हमसे बात करिएगा। आपने जप और ध्यान की बात किया जाता कि आपने बोला कि आप जप करती हैं और ध्यान करती हैं, मन नहीं लगता, इसीलिए तो लगाना है मन। जप इज आलंबन। जैसे कि कोई बच्चा गिर जाए और उठाने के लिए कोई हाथ देता है कि बेटा आओ हमारा हाथ पकड़ लो, उसी प्रकार से जब हमारे लिए एक आलंबन है कि हमने राम लिया और हमारा मन जहां रुका हुआ था वहां से उठ जाए। माई माइंड विल राइज फ्रॉम वेयर इट वॉज फॉलन। किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में, किसी क्रोध में, किसी चिंता में इतनी शक्ति है जप में। जप कभी शब्द नहीं है। जैसे माँ केवल स्त्री नहीं होती और तुलसी केवल पौधा नहीं है और गुरु आदमी नहीं है, उसी प्रकार से जप कोई शब्द नहीं है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है उसके अंदर, इतनी शक्ति है कि सामने भगवान खड़ा है। इतनी शक्ति है कि पृथ्वी टूट जाएगी। इतनी शक्ति है कि सूरज छितर बितर हो सकता, लेकिन हमारी जप सिद्धि होती नहीं आसानी से। तो बहुत श्रद्धा रखना आप जप में, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो श्री राम जय राम जय जय राम हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो। आपको भले जप में कुछ मन न लगे, मालूम न पड़े, लेकिन जब एकाग्रता प्रधान नहीं होता, जब श्रद्धा और आवृत्ति प्रधान होता है। In jap it is more important how much is the faith and how much you are chanting it. It is not important that how much the mind is running. Please get this point. मन भाग रहा है, भागने दीजिए, लेकिन आप यही सोचिए कि सामने भगवान हमारे खड़े और हम भगवान को बुला रहे हैं जब से। आई एम कॉलिंग गॉड थ्रू जप। और उनको आप सोचिए कि सामने खड़े हैं, हमारा जप सुन रहे हैं, हम उनको जप सुना रहे हैं, हम दिन रात उनको जप सुना रहे हैं। हमारा मन भाग रहा है, फिर वो जप सुन रहे हैं। आप उनके सर को हिलते हुए देखिए। जैसे जब आप किसी को सुनाते हैं तो सर हिलाता है, उसी प्रकार से जब आप जप करें तो उनका सर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। कुछ नहीं तो उनकी आंख देखिए, कुछ नहीं तो आप उनके ओंठ देखिए, कुछ नहीं तो आप उनके बाल देखिए, कुछ नहीं तो उनका पैर देखिए। उनके शरीर के किसी एक अंग को आप पकड़ लीजिए।
ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय तो आपको देखना है, नहीं भाग रहा है तो भी आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी कि पूरे शरीर में, आपके एक एक रग में ओम नमः शिवाय बस जाए। जो आपकी वाणी है बदल जाएगी, आपके अंदर जो जो ब्लड सर्कुलेशन है बदल जाएगा, जो हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, जो आपके अंदर सोचने की सामर्थ्य बदल जाएगी, जो आपकी सूक्ष्मता है बदल जाएगी, नींद बदल जाएगी, सोते समय भी आपका जप हो जाएगा, उठने के बाद जप तुरंत शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा आलंबन है कि जब आप दुखी होंगे, अपने आप वो जप का मंत्र आपसे बात करेगा। जब आपसे गलती होगी तो जप का मंत्र आपके पास आके बताएगा ये गलती है। आपके आसपास वो जप का देवता खड़ा होके आपकी रक्षा करेगा। इतनी जप में शक्ति है कि सारे देवता आपके पास रहेंगे। लेकिन ऐसा जप करने के लिए 20 साल 30 साल तक जो जप बहुत करेगा, शुद्ध व्यवहार रखेगा, आसपास के लोगों का आशीर्वाद लेके चलेगा, उसी की जप सिद्धि होगी। और निश्चित रूप से जप में बहुत बहुत शक्ति है, बहुत आनंद है, और कभी कभी आपको उसमें सुख मिलेगा, और आपके अंदर वो जप के भगवान खुद ही दर्शन दे देंगे। इसलिए जप कोई शब्द नहीं है, तो जप होता ही इसलिए है कि सारी वृत्ति को हटा के धीरे धीरे, जब आप शुरू में जप करिएगा, इतना बड़ा हमारा मन है, इतनी पतली सी धारा जप की रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप जप करिएगा, ये जप की धारा बढ़ती जाएगी, इतनी बड़ी होगी, फिर इतनी बड़ी होगी, फिर इतनी बड़ी होगी, फिर इतनी बड़ी होगी। एक दिन पूरे मन में वो जप छा जाएगा। और अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा। लेकिन जप की शक्ति अनंत, इसलिए आप खूब जप करिए। हमारा समय पूरा हो रहा है, लेकिन जो जितना जप करे, जपात सिद्धि जपात सिद्धि। अगर कोई पाप भी हो गया है तो वो जप से दूर हो सकता है। अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप 10 माला करके जप के देवता से पूछे कि आप हमको समझाइए, तो जप का देवता आपको समझा देगा। इतना इतना सामर्थ्य। अगर आपको डर लग रहा है तो जप कर लीजिए। कोई काम नहीं हो रहा है ठीक से, जप कर लीजिए। तो जप में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। आप ये मत देखिए कि मन कितना भाग रहा है जप, बस आप करते चलिए श्रद्धा के साथ। जप कभी भी भगवान का नाम नहीं होता। जप तो भगवान के से भी बड़ा होता है। भगवान तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जप नहीं, भगवान जप नहीं छोड़ सकता। भगवान का रूप जा सकता है, लेकिन नाम नहीं जा सकता। नाम आपके कंट्रोल में है, रूप उनके कंट्रोल में है। तो भगवान के रूप से बड़ा उनका नाम है। अगर हम आपका नाम कहीं बुलाएं जोर से, तो आप कहीं से भी भागे भागे आएंगे। उसी प्रकार से जितनी देर हम भगवान का नाम लेंगे और अपनी प्यास से बुलाएंगे, रो के बुलाएंगे, चीख के बुलाएंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारे पास आएंगे और आपको अपना बना लेंगे। तो ये बहुत बड़ी साधना है। सारे संतों को पढ़ने से नहीं कोई संत बना, जप से संत बना है, पूजा से संत बना है, सत्संग से संत बना है। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और आपका जो एक दो प्रश्न और है, आपने कुछ और प्रश्न किया, उसको बाद में कभी देखेंगे। जी स्वामी जी। लेकिन आप साधना करते रहिए ठीक। और ध्यान आप अपने इष्ट का करिए। अगर आपके कोई गुरुदेव हो तो आप उन गुरु से पूछिए अपने किनका ध्यान करें, जैसा वो आपको राय दें वैसा आप करिएगा। जो देवता आपका जप में है, अच्छा है, आप उन्हीं का ध्यान करिए तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी सगुण साकार उपासना है, आप ही गुरु है लेकिन स्वामी। ध्यान, हाँ, आप ही गुरु है स्वामी जी। जब हम मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे। जी स्वामी जी। लेकिन आप भगवान का नाम लीजिए और आप जप करिए। आपके पास बहुत बहुत आपको लगेगा पूरा संसार हमको मिल गया। जप करने में इतनी इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है कि लगेगा ही नहीं कि हमें कुछ और जरूरत। एक एक जप में इतनी ताकत होती है, लेकिन 30 साल लग जाते हैं, 40 साल लग जाते हैं, एक दो जन्म लग जाते हैं कभी कभी जप की शक्ति पकड़ने में और समझने में। और किसी को अगर जप बहुत अच्छा लगे और जप में बहुत श्रद्धा हो, तो उसने पिछले जन्म में वो जप पहले से किया हुआ है। ये तो शादी हो गई, ये तो शादी हो गई कि हमारी उस जप से शादी हो गई है।
हमारी रक्षा करेगा, वो हम हर समय रक्षा करें। और गुरु जो है वो आचार्य है, वो एक पुरोहित वाला काम करता है। इसलिए जो भी जप कर रहा हो, थोड़ा सा जप जरूर रोज करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर भगवान के कृपा आने का एक रास्ता खुला रहे। तो अंत समय में तो और कुछ काम आता नहीं, यही काम आएगा। ऐसा करिए कि आपको डर न लगे कि हमारा अंत समय में सब कुछ, सब लोग साथ छोड़ देंगे, हमारा हमारा जप, हमारी वाणी पे चलता रहे। जी स्वामी। चलिए, हमारा समय हो गया।